हाँ हाँ, पढ़ो। वन ऑफ यू रीड व्हाट इज रिटन। तेज तेज पूरी क्लास को कैसे सुनेगा? अरे कोई भी एक पढ़ लो यार। स्टार्ट है, ओके। मैम। हाँ, आप या साइड वाली मैम। See, when you talk about stakeholders, this term here, this exactly means that you're talking about shareholders, giving them not a priority, but making them equal on a table. Imagine there is a table in which everyone has a seat and everyone has an equal stake. Take it. So when you say stakeholders, you're actually putting shareholders on one of the seat, you're putting employees on the other, society, supply chain manager, everyone on one of the seats until the seats get exhausted, which means everyone will get a say. Now, your question, which should come out from you, is if that is the case, why don't we see it happening? Because we are not living in a utopian world. Utopian means that we are not living in a perfect world. This happens to be the case, but you will not look it around you. You will see that organizations are behaving in way which they find it's best for them. Coming back, we are actually trying to build a relationship between sustainability and business organization. We are trying to say that there is a correlation between sustainability and business organization. That correlation will even cause a causation. Sustainable business organizations are going to be successful in the future. Now let us take a practical example. Earlier, the working hours used to be more, right? Across the globe, if you see the trend, the number of working hours are reduced after COVID. Why is that so? Hmm. 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 फिर वर्क लाइफ बैलेंस से 10 to 8 हो गया, पर उससे मिल क्या रहा है हमें? जैसे सपोज वी बोथ वर्क, हम दोनों 10 10 घंटे काम कर रहे हैं, तो वी आर मेकिंग अ कंपनी। अब हम दोनों 8 8 घंटे काम करेंगे तो 4 घंटे का लॉस नहीं होगा? विल वी नॉट नीड टू हायर अनदर पर्सन? वुडंट इट लीड टू spending in terms of physical capital? What are we gaining? Why are the organizations doing it? है efficiency, okay. Thank you. See, as he brightly mentioned, efficiency. Efficiency happens to be midway target, which is productivity. Organizations are saving their human capital. Organizations have understood one thing very clearly. For any organization to work in the future, they require capital, both physical and human. No matter if they even spend a little bit more of physical capital, human capital is very valuable. Imagine you're trained an employee 4 years working in your business. ठीक है. Now he's a fit for the organization. One fine day he says that I don't wish to work here anymore. What would our response be? Why? How can we help? Can I do something to make it better? Or will your response be, okay, bye bye. It was nice having you. The other could be the response if the employee is not a good employee. But if that would have been the case, you would have asked him to leave politely very soon or way before the time.
It wouldn't have come to the stage where he would have been telling you, okay, I don't wish to work here anymore. This means the employee is a productive employee. And if you ask him to leave, the productive employee, what would happen? The organization would suffer, because the time you will again take to make that resource as productive as he was will take at least 4 years or less time, but there will be a time concept attached to it. The ethical imperative of sustainability. See, when we talk about sustainability, what do we mean? We mean that we will not give priority to short term gains, but we would give priority to long term gains. We will not have a myopic view of life, we will have a broad horizon view. So, by a broad horizon view means that you should always value your stakeholders. The value you are creating should not only be for your shareholder, which means you should not only create value in terms of money, you should also create value in terms of social bond, social standing, image of the company, like Tata Group has done. Tata Sons have made a social value. When you talk about Tata, the first thought which comes to your mind is ethics. You're like, Tata means ethics. And do you guys feel that the Tata Group is somewhere giving any good for free? अगर आप कभी ताज विजिट करो, do you feel that Taj is something which is very cheap, or Chroma is cheap, or Lakme is cheap? Then how are they creating? Guys, by cheap I honestly mean in comparison to all their competitors, the pricing. Lakme happens to be a semi-luxury cosmetic brand. That is after the invent of Bobbi Brown, Estee Lauder, brands like these, it happened to be semi-luxury. Before the entry of such brands, it was luxury. If you would not know, but there is a brand called Blue Heaven. It's a cosmetic brand owned by an Indian. It's an Indian produced brand. So majorly people were using Blue Heaven. When you talked about Lakme, people with high income group used to use Lakme. In middle class families, using Lakme or MAC products was not a common phenomenon. This is after the advent of Nika and major hoarding brands who are providing massive discounts and the rise in the income, that it has become a common name. I still remember, when that Lakme foundation used to come, if you actually take its price for a kg, it will turn into lakhs. It's a 2 gram foundation for, I don't know what's the price right now. I haven't bought it. Earlier I used to buy it for my mother, so I was very updated about the prices. I used to visit with my mother to the beauty stores. Take care. And there also the argument while they were selling was sustainability. It just tried me right now. So, have you ever visited a store? Any guy who has visited a beauty store, like has gone with their mother, sister, take care, with their partner to buy a lipstick or any product of that sort? So, the first thing which that lady on the counter says is, "Ma'am, this is going to stay longer. You will just have to apply one coat, and this coat will stay 10 hours. In the other brand, you might have to apply 3 coats. It might be cheap, but that will only stay for 6 hours." Right? So you're understanding, like when you're actually selling local products, by local products, I mean day to day life products, then also sustainability is being used as an argument for, driving the sale. This is about the sustainability of product, right? Not in terms of environment, but in terms of quality. When you talk about sustainability, okay, whether it is in terms of environment or human capital, it is sustainability of an organization. You're actually talking about quality of an organization. Like if today you put 10 CR in an organization which is not going to sustain for 5 years, will you put it?
But you know that you put 10 CR and that organization is going to sustain for 200 years. You will of course put it. You like, I would gain. If they are going to survive, this means they will have market traction. If market traction is there, people are attracted in market by the brand, there would be sales, which means your money would multiply. The second point they say is transparency and accountability. So I would like to ask you, when we talk about transparency and accountability, we get it. Transparency is being honest as you can be about a business process, and accountability is taking responsibility. ठीक है. Is it a one-way street or is it a two-way street? One-way street means that only the organization has to do it for its employees. ठीक है. Only for internal people who are part of the internal management. ठीक है. It's a two-way street. The organization has to remain transparent for the society, which is something external cue, and the internal cues. Internal cues are employees, shareholder, distributor, everyone. What do I mean by accountability? Have you seen brown brands being accountable for their actions, for their wrongdoing, or something which happened which they were not sure what was the cause? Have you seen that happening in the real life? Sorry, hello. Guys, think about. So they are saying the brand should be responsible for their environmental and social impacts. I can talk about environmental impacts. It's very clear. कि if in the production process you are producing pollution, then you should take care of it. Let us come first to the social impact. What is the social impact of a brand? Okay. So if brands were not socially conscious, if they were not, let us assume brands are not socially conscious. ठीक है. Do you see alcohol ads on TV? अल्कोहल के ऐड कभी भी टीवी में नहीं आती, कभी भी नहीं आती. मैं कह रहा हूँ कि सोशली हम अज्यूम करते हैं. सबसे पहले हम अज्यूम करते हैं कि ब्रांड सोशली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, क्योंकि अभी आप लोग नहीं बता पाए एग्जाम्पल, तो मैं सोच रहा हूँ कि नहीं होगी. ठीक है. पर मैं कह रहा हूँ अगर नहीं है तो फिर अल्कोहल की एड तो टीवी पे आनी चाहिए. सोशल देखो, मैं शराब बना रहा हूँ, आई एम मेकिंग अल्कोहल, आई एम नॉट पुटिंग इट इन योर माउथ फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. भाई आई हैव अ प्राइस टैग एसोसिएटेड विद इट ना. ऐसे तो लोग जो फ्लूइड होती है उसको सूंघ के भी नशे करते हैं. उसमें ब्रांड का क्या मतलब? जो कोरिस कंपनी है विच मेक फ्लूइड्स, उन्होंने कोई लोगों के नशे के लिए थोड़ी बनाई है. उन्होंने तो एक सिंपल चीज नहीं कि पेपर में बच्चे से गलती हो जाए, बच्चा उसे रेक्टिफाई कर पाए. दैट वाज द ऑब्जेक्टिव ना. जो अल्कोहल बनाने वाली ब्रांड्स है, दे हैव नॉट क्रिएटेड दैट पीपल विल बिकम अल्कोहलिक. They created with the objective कि if people want to have good time, they want to lower their inhibition, they can have a drink or two. If people feel cold, they can have a drink or two. Right? But people misuse it. मैं कह रहा हूँ कि ब्रांड कॉन्शियस नहीं होते तो टीवी पे एडवर्टीजमेंट देते. But you don't see that happening, which means that वो बैन है पर उस बैन को अच्छे से ले भी तो रहे हैं. सी, बैन तो ब्लैक मार्केटिंग भी है. अभी दिलजीत का कॉन्सर्ट हुआ था, पूरी ब्लैक मार्केटिंग हुई टिकट्स की. राइट? है नहीं, चाइना में बैन हो जाता है. वो हमारी गवर्नमेंट के लिए मुश्किल होगा बिकॉज वी आर अ डेमोक्रेसी. सी, डेमोक्रेसी हैज इट्स ओन थिंग. पर जब ये बैन हुआ तब किसी ब्रांड ने ये नहीं बोला अल्कोहल ने कि गलत है. या सिगरेट की जो डिब्बी आती है उस पर इतना बड़ा पोस्टर होता है थ्रोट कैंसर का.
No brand says कि नहीं, we will not put that visual representation. That affects business. But they know that we require a sustainable environment. If people are also over consuming our product and it creates massive health problems, then it will stop completely. So of course brands want to acquire new customer but not on the social cost. Number two, you would see, we have come to the different slide. You will see a lot of, जैसे जब मैगी वाला fiasco हुआ, Nestle took accountability. Nestle said कि हम मैगी बनाते हैं, we will delve deeper into it. ठीक है. Then there are other news के Nestle did this, Nestle did that. But I don't believe it because there are different competitors in the market as well. It is not a single brand. People will try to put it down. Like a lot of people have been having Maggie since their very childhood, and for good years it has not failed us. ठीक है. Let us talk about environmental impact. Do you think that the brands are doing environmentally justice? How can we ensure that environmental impacts are held accountable? क्या? Okay. And what makes us think that they're not doing that right now? See, if you really want only, me to give you the book knowledge, then I can say कि this is not happening. But एक बार let us see from a practical point of view. So you are a brand, ठीक है, you're founder of a brand. If you would have had money for a higher technology, you would have spent it. The reason why you're not spending it, the moment you spend so much money on something which is not very widely enforced, ठीक है, cost would increase and you will be thrown out of the market by the forces of market demand and supply. Like you do not even have to do anything. So imagine, I'll give you a very good example. There is something called leather products. ठीक है, तो when you go to buy a leather bag, जो original leather bag होता है, somewhere around it would cost you 3, 4, 6K. ठीक है, 2.5 में you will get resin. Resin is artificial leather. It is called PU. It has elements of plastic in it. ठीक है, that's why when you will burn artificial leather, it will get burned. Real leather products do not catch fire. ठीक है, and they will not catch fire easily. Now they made something, क्योंकि लेदर के लिए आपको एनिमल की स्किन निकालनी पड़ती थी, तो somebody said कि people are killing animals. मतलब कोई भी बफलो काफ होता है जो मिल्क प्रोड्यूस नहीं कर सकता, ठीक है, तो people will kill that and use their skin to create products, which is not a sustainable thing. ठीक है, तो they made leather from using cactus है, and they say, and that is very expensive right now because the technology is not easy. Now imagine my brand, I am a sustainable brand. I am coming in Indian market where people have a habit of buying 500 rupees leather products because they don't know differentiating factor between resin and leather. So any local brand which says I'm giving leather, it feels like leather, you guys buy it. There I wish to sell a 10K product. What would happen? I will run out of the market. So the reason why brands are not able to become environmentally sustainable is not the brand. It is the environmental cues. It is the societal cues. The society has dragged brands to become environmentally irresponsible. We are the reason why brands are irresponsible.
and not the other way around. I'm really sorry to tell you. Have you ever imagined big brands like Gucci, Louis Vuitton? How are they so environmental friendly? How they're able to spend? Because they have the money. We have placed them in the luxury category and we are ready to pay for them. But when it comes to everyday products, because of our fixed earning capacity, we are not ready to pay. Right? So imagine I get two water bottles. One is from recycled water, ठीक है, which has been coming from urinals. You understand how is water being recycled? I'm I'm going to tell you something and you're going to be like, sir, क्यों ही बताया हमें? आप आज नहीं बोलते तो अच्छा होता. Imagine you're caught in a desert. You don't have water. ठीक है? एंड तुम्हें अभी कम से कम चलना है 100 किलोमीटर. देर इज नो हेल्प ऑन द वे. यू हैव अ एम्प्टी बॉटल एंड अ क्लॉथ. व्हाट विल यू डू? बिना पानी के तो सर्वाइव नहीं करोगे. पानी रेगिस्तान में लाओगे कहाँ से? वन वन स्वेट कलेक्ट कर सकते हो, और द अदर वेज कि जो आपका यूरिन आता है उसे कलेक्ट करो, उसे डिस्टिल करो, उसे बेस्ट प्योरीफाई करो जितना कर सकते हो, और वापस पी लो. और आप में से जितने लोग अभी मन ही मन हंस रहे हैं कि सर क्या कह रहे हैं, दैट इज हाउ वाटर इज री कमिंग बैक टू यू. जो भी आप पानी फ्लश आउट कर रहे हो, वो पानी जाके वापस क्लीन होके ही घर में आ रहा है. और कहाँ से आ रहा है पानी? नया पानी थोड़ी बन रहा है. गवर्नमेंट का सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर किस काम में होता है? पानी साफ करने में. गवर्नमेंट पानी का कोई प्राइस ले नहीं रही. अगर गवर्नमेंट पानी को बेचने पे आए तो सोने से भी महंगा बिके पानी 1 लीटर. आप मुझे बताओ ना, बिना पानी के कौन सी एक्टिविटी हो सकती है? लीव एवरी अदर एक्टिविटी, यू कैन नॉट लिव. 2.5 लीटर पानी तो चाहिए जीने के लिए रोज. उससे कम में तो आप सर्वाइव भी नहीं कर सकते. ठीक है? तो इफ यू एक्चुअली थिंक अबाउट इट, are we guys environmentally responsible if we take and before we come to a society like कि ये कंपनी क्या कर रही है? What do we do in Delhi? We're washing our cars, we're washing our houses, we're spilling water. ठीक है? In Bangalore, it is not legal to wash a car, and they take it very seriously. April to July, there is severe shortage of water. They will have multiple checks, and if you are found to break even one, they will penalize you. Strict penalize because their water bed has actually decreased. ठीक है? So in short, if we even want the brands to be environmentally sustainable, we have to create a sustainable environment. The third, we should always have a long-term vision. As a brand, we should not think about producing only in the short term. We should look for a long-term goal. ठीक है? Environmental sustainability, reducing ecological footprint. Okay. What do you want? The point is that we want to minimize environmental impact for sustainable business practice, as we've talked about. ठीक है? This involves reducing resource consumption, minimizing waste generation, and mitigating pollution across the entire value chain. ठीक है? From sourcing of raw materials to manufacturing processes to produce product disposal, business must strive to decouple economic growth from environmental degradation. ठीक है? What is very important to create something which is environmentally sustainable?
For anything to be environmentally sustainable, what is a very basic prerequisite? क्या? टेक्नोलॉजी? ओके। डू यू थिंक कि इंडिया की जितनी पॉपुलेशन है, यहाँ पे environmental sustainability is an easy thing? Have you guys been to पहाड़, माउंटेन्स? वहाँ पे क्या दिखता है आप लोग को? आप देखना कभी भी किसी पहाड़ पे जाना, मनाली, देहरादून, जहाँ पे भी जाना है, काफी अच्छी अच्छी वादियाँ होंगी। फिर वहां से दिल्ली नाम की एक स्कॉर्पियो निकलेगी, जिसपे दिल्ली का नंबर होगा। उसमें से दो बच्चे प्लास्टिक की बोतल फेंक रहे होंगे इधर उधर। मैंने आई विल टेल यू पर्सनल एनेक्डोट। आई वेंट टू मसूरी, बिल्कुल साफ पहाड़, ठीक है। तो एक बच्चा चिप्स खा रहा था रिजॉर्ट पे। अगर आप उसमें नीचे देखोगे एक साइड पे, तो बिल्कुल लश ग्रीन फॉरेस्ट, मतलब देख के आपकी आत्मा तृप्त हो जाए। उसकी मम्मी बोलती, अरे तू फेंक देना, डस्टबिन क्यों ढूंढ रहा है? मेरा बेटा क्या डस्टबिन ढूंढेगा? लाइक हाँ, ढूंढेगा और फेंकेगा। मैंने कहा आंटी आप ऐसे फेंकवा रहे हो, इज इट अ गुड थिंग? कहती मेरे एक बच्चे के फेंकने से क्या पूरा ये मिट्टी मिट्टी में हो गया? मैंने कहा अगर आप मिट्टी फेंकते तो फिर भी खुशी वाली बात थी, सॉइल इरोजन नहीं होती। आप जो कह रहे हो, आप तो प्लास्टिक फेंक रहे हो, ये डिकम्पोज तो होगा ही नहीं। अब सपोज 2 लाख लोग आए एक सीजन में, और 2 लाख लोगों ने दो दो चीजें भी फेंकी, 4 लाख चीजें हो गई ना। एंड द सेम थिंग हैज हैपेंड नाउ। अब कश्मीर में जो टूरिस्ट है वो बढ़ गया है। क्या होगा वहां पे? नहीं, वहां पे टेररिज्म जो था, it benefited in one way, that it did not lead to environmental degradation. Which does not say that you have to have terrorism for that. You have to have a conscious population. अब वहां पे क्या है कि एकदम से द गेट्स हैव ओपन एंड इट इज वेरी प्रिटी। मतलब जितना भी वर्णन किया गया उसकी ब्यूटी के बारे में कश्मीर की, इट इज एक्चुअली ट्रू। तो अब सेम चीज होगी वहां पे, डिग्रेडेशन हो जाएगी, ठीक है। So we have to, for anything to be environmentally sustainable, three things should happen. The resources should be used efficiently. There should be renewable energy. What are the renewable sources of energy? Why are we not able to use all of them? आज भी हमारी जो विंड की प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो 5 मेगावाट तक है। We are not able to use them efficiently. Why? क्या हुआ? क्यों नहीं कर रहे? हम्म, क्या टूट क्या टूट गई? क्या बनाना चाहती गवर्नमेंट? विंड बीट? सी, एजुकेशन इज वन रीजन ऑल्सो कि लोग को समझ नहीं आएगा, बट वी शुड शिफ्ट टूवर्ड्स इट। हाउ डू यू कंट्रोल पोल्यूशन? गाइस तुम भी बोल रहे हो मेरा गला खराब है। ऑनेस्टली आई हैव अ वेरी सिवियर बैड थ्रोट। समबडी रीड इट फर्स्ट। मैम? हाँ, जल्दी 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 जल्दी। पोल्यूशन कंट्रोल।
कौन सा स्टेट है जहाँ पे वाटर पोल्यूशन से ह्यूमन हेल्थ अफेक्ट हुई है? इज देयर एनी स्टेट वेयर वाटर पोल्यूशन हैज कॉज्ड डैमेज टू ह्यूमन हेल्थ? दिल्ली। स्किन डिजीजेस, हरिद्वार। ओके। फ्लड्स, पंजाब। बठिंडा, पंजाब में कैंसर कैपिटल। वहां पे कैंसर हुआ क्यों है? वो फर्टिलाइजर्स उनके वाटर बेड में एम्बेड हो गए, ठीक है, और अब इतने ज्यादा एम्बेड हो चुके हैं कि उनका वाटर बेड डिप्लीट हो चुका है और सिर्फ वो केमिकल्स है, एंड पीपल आर ड्रिंकिंग दैट वाटर एंड ईटिंग द क्रॉप्स। तो वहां पे डबल एजेंट्स हो गए एंड यू सी अ लॉट ऑफ कैंसर हैपनिंग देयर, ठीक है। सो इट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी दैट वी टेक केयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स। Social sustainability, fostering equitable and inclusive practices. What are inclusive means? To include all the stakeholders. कि आप सिर्फ एक शेयर होल्डर के लिए प्रैक्टिस ना करो, सबके लिए करो. What is the first? Fair labor practices. Do we get it? Yes. Second is community engagement. How do you create community engagement? होती किस सेंस में कम्युनिटी engagement? How do you engage community? Community क्या होता है? कम्युनिटी चाहिए, आर्मी थोड़ी चाहिए. हाँ, वही तो आर्मी होती है. कैन वी बी अ कम्युनिटी? क्या हम सबकी सेम थिंकिंग है? किस पे? नहीं नहीं, अच्छी बात है. दैट इज हाउ लर्निंग हैपेंस. तो व्हाई आर दे मीटिंग टुगेदर? व्हाट इज दैट कॉमन थ्रेड ऑफ कॉमनैलिटी? गाइस सोचो यार. अरे तुम प्रॉब्लम से दूर हो जाओ, अब सोल्यूशन पे आ जाओ. जैसे दशहरा पे तुम सारे साथ में क्यों मिलते हो? गरबा साथ में क्यों करते हैं? इज इन दैट कम्युनिटी एंगेजमेंट? पीपल फ्रॉम डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट कास्ट स्ट्रक्चर, different professions dress up, come together with a common goal of having fun. तो जब वो हैव फन करते हैं तो अपना पार्किंग लॉट भी साफ करते हैं जहाँ गरबा का फंक्शन होगा, रिसोर्सेज भी अरेंज करते हैं. वी आर टॉकिंग सच टाइप ऑफ एंगेजमेंट्स. ऐसी एंगेजमेंट्स मुंबई में होती है वे पीपल कम टुगेदर टू क्लीन द बीच. बीच बीच पे पोल्यूशन होता है ना, प्लास्टिक के रैपर होते हैं, कुछ होता है, तो सब आते हैं. थाईलैंड बैंकॉक में लोग आए, जो वहाँ की रिवर सिस्टम थी उनमें लोगों ने कूड़ा फेंक रखा था, तो 200 पीपल केम टुगेदर टू क्लीन दोज रिवर्स. हाँ, जैसे हमारे यहाँ पे आपने, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, जो गंदे नाले हैं देर एक्चुअली रिवर्स. हमने स्लर्ज डाल डाल के ने गंदा कर दिया.
अपन फाइंड डे वी कम एंड वी से कि सत्यकाम भवन को पूरा साफ करेंगे. नॉट दैट इट्स नॉट क्लीन, बट वी वांट टू मेक इट मोर क्लीनर. या हम एज अ कम्युनिटी स्टूडेंट्स और टीचर मिलके यहाँ पे झाड़ू मारेंगे. Prime Minister also did that only, right? That is called community engagement. Ethical sourcing. Producing raw material and product suppliers which adhere to ethical labor practices and environment standards. एथिकल सोर्सिंग का भी एक बहुत बड़ा अपीवल हुआ था रिसेंटली पीछे. क्या था अपीवल? वो कुछ रिलेटेड था ना, लग्जरी ब्रांड्स जो कपड़े बना रही है बांग्लादेश में, वहां पे लेबर की जो प्रैक्टिसेस थी वो बहुत गलत थी. हम्म. कतर में भी होता है. एक बार देखो, अगर आप लोग का इंटरनेट चल रहा है. वोडाफोन जिसका है, चेक फॉर बांग्लादेश लेबर प्रैक्टिसेस. Yes, I'm just trying. Sorry, the internet. अगर आप इसे एक्चुअल में कभी अपने घर पे देखोगे तो नहीं, यहाँ पे ना, जब एक बार देखना बांग्लादेश में कि जारा वारा ये प्रोड्यूस कहाँ पे करते हैं, एंड यू वुड सी अ फैक्ट्री. ये वाला लिंक पढ़ना. सो देयर वर गारमेंट फैक्ट्रीज इन बांग्लादेश जहाँ पे जारा एंड H&M वर प्रोड्यूसिंग गुड्स. ठीक है. वहाँ पे लेबर ट्रीटमेंट और लेबर की कंडीशन बहुत खराब थी, एंड दोज वर क्लोज्ड. ऐसे यू वुड सी दैट जहाँ पे भी चीप लेबर होता है वहाँ पे जो प्रैक्टिस होती है, लाइक अगर आप नहीं नहीं चाइना यानी कि, पर चाइना की लेबर प्रैक्टिसेस आर वेरी फेयर. यू सी. ठीक है. द लास्ट पॉइंट इज डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन. ठीक है. वी शुड इंक्लूड पीपल फ्रॉम डाइवर्स बैकग्राउंड एंड नॉट मेक देम फील एलियनेटेड. ठीक है. इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड क्रिएटिंग लॉन्ग टर्म वैल्यू. इकोनॉमिक जैसा पढ़िए, आप पढ़ो चलो. दिस इज बहुत खास है. चलो.
There's two way to do it. One is circular economy. By circular economy, I mean that if I'm going to use resource well, it's going to get circulated in the same way. Because whatever I am a consumer of, and it does not stop at me. For some other, for again, if I produce some goods, for example, जैसे मैं wheat लूँ, तो farmer क्या होता है? Producer. जो buyer है वो consumer है. Buyer उससे बिस्किट बना ले, तो अब वो प्रोड्यूसर हो गया बिस्किट का, कोई और कंज्यूमर हो गया. तो इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कल. इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दैट, राइट. सपोज उससे मैं ब्रेड बनाऊं, फार्मर के बच्चे को ब्रेड पसंद हो, तो वो वापस फार्मर के पास उसी की वीट पहुंच जाती है. सो इफ आई हैव अ सस्टेनेबल प्रैक्टिस एट वन पॉइंट इन द चेन, इट विल मेक द होल चेन सस्टेनेबल, राइट. Second is innovation and technology. Like I should make technologically, I should have improvements, and I should use better technology to do stuff, right? Sustainable supply chain management, ठीक है. While you're sourcing, देखो supply chain management क्या, उसमें चार चीजें होती है: sourcing, production, distribution and consumption. Sourcing chooses a supplier committed to sustainable practice, choosing a farmer who is committed to using manure over fertilizer. Production, implementing environmentally friendly manufacturing processes. While you're producing beds, you're not a mass producer. You would see a lot of people who have come, ठीक है, brands who are saying that we are not using palm oil, we are not using मैदा. तुम्हें पता है पहले जब इंडिया में वो नहीं थी, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये ब्रेड के लिए आटा कैसे गूंथते थे? हाँ. और आज भी जितने भी ढाबों में रोटी बनती है, ठीक है, वो सारी, नहीं तो तवा रोटी तो बनती नहीं ना, जितना इनका नान का भी वो डो होता है उसमें भी मैदा होता है, वो सारा आज भी पैरों से गूंदा जाता है. अगर आप लोग को लग रहा है कि 1000 लोगों के लिए कोई हाथ लेके यूं यूं करता रहेगा तो उसके हाथ खत्म हो जाएंगे. जैसे वाइन यार्ड में जब वाइन्स, जो लोग पैसे देते हैं कि वाइन प्रोडक्शन के लिए, तो जो ग्रेप्स होते हैं वो मैश अपने पैरों से करते हैं, ठीक है, एंड दे वेरी हैप्पी. तो दे आर वेरी हैप्पी ना, दे मैशिंग इट, दे फील ओ वाओ इट इज सो थेरेप्यूटिक. तो जब तुम्हारा कोई आटा गूंद रहा होगा तो वो भी ऐसे कह रहा होगा वाओ इट्स सो थेरेप्यूटिक. सिमिलरली मोमोज बनते हैं. जितने भी दिल्ली के मोमोज है, मोस्टली 90% ऑफ देम कम फ्रॉम चिराग दिल्ली. देयर आर वेयर हाउसेज जहाँ पे वो 5-5 महीने डीप फ्रीज रहते हैं. हाँ, तुम्हें 5 मंथ्स तुम्हें अभी रेड की है भाई. एक फैमिली है 10 बंदों की, वो सिर्फ मोमोज ही बनाती है. वो सुबह उठ के दे जस्ट डूइंग दैट. डिस्ट्रीब्यूशन, आप चाहोगे कि जो भी आपके लॉजिस्टिक्स है वो कॉस्ट इफेक्टिव होने के हिसाब से इन्वायरमेंटली इफेक्टिव भी हो, ठीक है. कंजम्पशन, प्रमोटिंग रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन. मतलब अब आप कहोगे सर ब्रेड में क्या रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन है? कुछ लोग होते नहीं कि ब्रेड खाते हैं और उसके कॉर्नर्स फेंक देते हैं. भाई दोज आर एडिबल. आप कॉर्नर फेंक क्यों रहे हो? उस कॉर्नर को वापस रिसाइकिल करने में 100 ग्राम खाने को 10 लीटर पानी लगता है. 10 लीटर पानी बर्बाद होता है. 100 ग्राम दाल के लिए 7 लीटर पानी. वाई विल यू वेस्ट वाटर? अगर आपको नहीं खाना, डोंट ईट इट ओनली ना. You would see people leaving food in their plates, which is the most unethical practice I've ever seen. Why would you leave food? आप खाना मत लो. Why would you waste it? ठीक है. How do you create stakeholder engagement and collaboration? ठीक है.
यू वांट कि जितने भी आपके सारे स्टेक होल्डर्स है, वेदर यू टॉक अबाउट कम्युनिटी, कस्टमर, सप्लायर, एम्प्लॉयज, हाउ विल यू क्रिएट देयर एंगेजमेंट। अभी बहुत सही कैंपेन हो रहा है by a very big brand in India. They have tried to foster this. बताओ, सोचो एक बार, 2 मिनट तो सोचो। सेम चीज है, वो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट एंड कोलैबोरेशन कर रही है वो ब्रांड इन अ वेरी यूनिक वे। फूड, जोमैटो, जोमैटो का जो सीईओ है वो बैंगलोर और अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज में बाइक में घूम रहा है along with his wife delivering food. Why? A, बिजनेस समझ आता है ग्राउंड रियलिटी। बी, समझ आता है कि एम्प्लॉय के साथ ट्रीटमेंट क्या होता है। देयर इज अ वीडियो वेर ही वांट्स टू एंटर इनटू अ मॉल, ही इज नॉट अलाउड टू एंटर, ही इज बीन टोल्ड यूज अ स्टेयरकेस। वहां पे वो 3 फ्लोर चढ़ा है गर्मी में, ही सीज दैट हिज एम्प्लॉयज आर सिटिंग आउटसाइड इन द फायर एग्जिट। भाई, मॉल पब्लिक के लिए बना है, डिलीवरी बॉय भी पब्लिक में आता है नहीं, यू डू द चेकिंग ना। नहीं, फिर वो तो कोई भी ले जा सकता है ना, पर उससे आप इनह्यूमन ट्रीटमेंट करो। फिर तो देखो, जो एथिकल क्लेंजिंग है वो भी सही हो गई, जस्टिफाइड हो गई। आप किसी को उसके बेसिस ऑफ वर्क पे जज नहीं कर सकते ना। मैंने मॉल में वो जो पूरा रखा है सेटअप, मैं चाहता हूं कि लोग आए, ठीक है, ये क्या बात हो गई कि आप नहीं खरीद सकते, आप मत आओ। कल को तो ये लोगों को कपड़ों के बेसिस पे भी मॉल से निकालने लगेंगे। नहीं, मेरे साथ एक बार दे वर ट्राइंग टू एक्ट स्मार्ट, आई टोल्ड देम डू नॉट क्रॉस द लाइन, इट इज नॉट गोइंग टू बी गुड फॉर एनीवन, बिकॉज यू कैन नॉट, जैसे देर आर रेस्टोरेंट्स हु डू नॉट गिव एंट्री ऑन द बेस से बड़ी इज वेयरिंग स्लीपर, हाउ डज इट मैटर? Clothing is for comfort and it is for your state of mind. If I feel comfortable wearing a sleeper, what is the issue? Right? So, Zomato did this program to understand their customer, the community, जो खाना मंगवा रही है, जो डिलीवरी करने जा रही है, एम्प्लॉयज जो सारे काम कर रहे हैं, एंड इट्स गोइंग टू पे देम बैक। Not only as a brand, I value Zomato more, but I understand that they want to stay in the business. जब सीईओ लेजिट बाइक पे घूम रहा हो पूरा दिन, दैट मीन्स दैट ही मीन्स बिजनेस। ठीक है, क्या, क्यों? जोमैटो, जोमैटो ट्वीट करता है, उसने ये वीडियो निकाली। अब वो जो भी मॉल है उन्होंने उसका नाम नहीं बताया, बट जितना उस वीडियो में था मैंने देखा उसमें तो नाम नहीं था, बट बट समथिंग ऑफ दिस सॉर्ट हैपेंड ना। अगर वो जाता ही नहीं सीईओ तो वो होता कैसे? एंड लॉन्ग टर्म में सोचो, अगर जोमैटो इज द ओनली बिग फूड चेन जो डिलीवरी कर रही है, जोमैटो से आगे आने वाले 10 साल में ब्लैकलिस्ट कर दे, हो सकता है ना? आज नहीं हो सकता, पर हमने लास्ट स्लाइड में देखा कि हमें लॉन्ग टर्म भी देखना है। जो हमारे फूड डिलीवरी पार्टनर्स हैं, मुझे नहीं पता कि लोगों का कैसा बिहेवियर, जैसे मेरे घर पे कोई भी आता है,
कोई भी आता है फूड डिलीवरी पार्टनर, मैं उसे कोल्ड ड्रिंक पिए ना जाने नहीं देता। वो रात को 2 बजे आता है, वो कहता है भैया आप सही तो हो ना, क्योंकि पीपल आर स्केर्ड, पीपल आर लाइक लिफ्ट में रख दो, भाई लिफ्ट में रख दो ठीक है, 2 बजे वो बंदा आया है घर बार छोड़ के अपना, ठीक है। नहीं नहीं, मैं पहले आराम से बिठाता हूँ, जैसे मेरी लिफ्ट के पास स्टेयर्स है, सी घर पे बिठाना इस थोड़ा सेफ्टी वाइज नॉट इन, पर मैं स्टेज पे, हमारे यहाँ पे पूरा वो सेंट्रली एयर कंडीशन है तो कोई इशू नहीं है, स्टेज पे बैठते हैं, साथ में बैठता हूँ मैं, बिस्लरी की बोतल ऑफर करता हूँ कि लो भाई हैव इट, देन अगर मेरे पास लाहौरी वाहौरी जीरा होता है देन आई ऑफर देम, ठीक है, while I am having my coffee with them and discussing to them how life is, ठीक है, I ask them are you happy, नहीं this is required. I have never met even one person from Zomato who tried to harm me in any possible way. They have been very kind. This society does not have criminals, it has people who are not well understood. We create something and we have named them in a very negative connotation. पर जो बंदा रात को 2 बजे डिलीवरी कर रहा है, इसका मतलब वो अपने लाइफ में सीरियस है, he wants to earn, and money should not be the only thing he should be earning, it should be respect also, and that is one way of telling him. तो पहली 2-4 बार तो जब मैं बैठा तो उन लोगों को लगा कि आई ऑल्सो वर्क इन द हाउस, और मालिक गए हुए हैं, सो दे टोल्ड मी भैया कितने मिलते हैं वैसे इधर, मैंने कहा 0, कहते आप बड़े अच्छे हो फ्री में काम कर रहे हो, मैंने कहा नहीं मेरा ही घर है तेलुगु में। I asked them why, and I asked them why. They like nothing to do with your clothes and stuff and the way you look. People don't give us respect. हम लोग के घर पे जाते हैं, हम लोग को बोलते हैं भैया नीचे आके ले लो, दे लाइक मैं कंप्लेंट कर दूंगा, and it should be for everyone. Like I remember I ordered 10 लीटर वाटर के जार्स, 2, तो वो डिलीवरी वाला, एंड लिफ्ट वाज नॉट वर्किंग, वो बंदा कहता सर आप नीचे आ जाओ, मैं नीचे आ गया, मैंने कहा भैया एक मैं उठाऊंगा एक आप उठाओ, इक्वल, अगर आपको कोई हेल्थ प्रॉब्लम है तो मैं दोनों ले जाऊंगा, कह रहे नहीं भैया आप, मैं दोनों उठा लूंगा, आप सब साथ में चलो मेरे, मैंने कहा नहीं एक तो मैं उठा लूंगा, दैट इज नॉट एन इशू। वी वेंट, ही वाज वेरी हैप्पी, ही हग्ड मी एंड वेंट। We have become insensitive as a society. We have started categorizing people on the basis of the work. जब हम वो काम करते थे तब हमें इमोशनल सपोर्ट और हम चाहते थे कि लोग तमीज से बात करें, बट व्हेन टेबल्स हैव टर्न्ड, आवर बिहेवियर हैज आल्सो टेकन अ यू टर्न। व्हाट डू वी वांट नाउ? Like we act like boss and they're like yes sir. Going further ahead, how do you measure and report sustainable performance? ठीक है, so the metric could be, we've talked about 3 metrics, there could be more metrics depending upon the type of business. First we talk about greenhouse gas emission, इसको हम चेक करेंगे बाय टोटल अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउसेस गैसेस विच आर एमिटेड। ग्रीन हाउस गैसेस किस किस चीज में मिलती है? CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रेफ्रिजरेटिंग गैस, AC गैस में कॉमनली फाउंड। देन वी कैन सी वाटर कंजम्पशन, ठीक है, वाटर कंजम्पशन, वाटर इज यूज्ड इन एवरी प्रोसेस बाय एवरी कंपनी, ठीक है, चाहे वो ओरिएंटेड हो या ना हो वाटर बिजनेस में, चाहे आप क्लोथिंग की बात करो, FMCG की बात करो, इट इज यूज्ड। Then is waste generation, total amount of waste generated by a company's operation. See, the problem with these matrices are that they are difficult to comprehend. ठीक है, it is easy, you know, to act that these things have not been done by us. For example, if there is a common site जहाँ पे सारी कंपनीज वेस्ट डालती है,
आई कैन नॉट नो ना कि कौन सी कंपनी मेजर डालती है अनलेस आई पुट अ पर्सन कि भाई आप चेक करो, ठीक है। दैट कंप्लायंस सिस्टम शुड नॉट इवन एग्जिस्ट। कंपनी शुड बी ऑनेस्ट इनफ टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, you are not supposed to know the framework, you are just supposed to know what do they mean. So when you give an example of sustainability reporting framework, you know, ठीक है। So there is something called GRI, Global Reporting Initiative, ठीक है। There's something called SASB, which is Sustainable Accounting Standard Board, ठीक है। And there is TCFD, this is a Task Force Climate Related Financial Disclosures, ठीक है। All of them are working in their various fields. There is, like, in your exams, I do not expect you to write about them in great depth, but you should just know them, ठीक है। When you talk about the role of technology, of course you understand data analysis, artificial intelligence, big computing, ठीक है। Renewable energy, अभी you were talking about solar panels and stuff. Have you guys heard about something called drones? Yes. I'll ask you a question, answer it, मतलब सोच के बोलना। How important are honeybees for us? मधुमक्खी। How important are मधुमक्खी? Extremely important, क्यों भाई? Why so? Pollination नहीं होगा? Do we understand that? Very good. अभी मधुमक्खी की पॉपुलेशन डिक्रीज हो रही है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द लॉस ऑफ नेचुरल हैबिटेट। तो क्या स्टेप लिया हमने टेक्नोलॉजी वाइज? वी क्रिएटेड, जो मुझे पता है, आई डोंट नो इफ आई हैव डिस्कस्ड इट विद यू, एक कंपनी ने ड्रोन बनाया मधुमक्खी के साइज के, विच विल हेल्प इन आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। यस, एंड इट हैज रिसीव्ड ग्लोबल फंडिंग। ग्लोबल मतलब name the country and they wanted to fund in them, and they have got some awards also. सोचो इतना सा ड्रोन बनाया उन्होंने और वो जाके पॉलिनेशन करेगा। It will act like a bee. That is why you would see a lot of UN campaigns are also about save the bee. 80% of pollination in the world happens through honeybee. So you will see a big reduction in flora and fauna if honeybees are not there. ठीक है? Any point in this which is not clear? How will you use AI? How will you use AI? Okay, इसमें AI का एग्जांपल है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में कौन सा सॉइल टाइप है, कितना फर्टिलाइजर डालना है, ठीक है, वाटर मैनेजमेंट। नॉलेज ड्राइव करने के लिए नहीं, प्रोसेसेस को और ऑटोमेट करने के लिए भी। आप सोचो, मैं आपको बताता हूँ, आई नो अ ड्रोन स्टार्टअप, दे आर वर्किंग फॉर, जो ये फर्टिलाइजर और ये सब कुछ दवाई ववाई स्प्रेड नहीं करनी होती, वो थ्रू ड्रोन्स होगा। तो 1 हेक्टेयर लैंड के लिए एक ह्यूमन बींग को 2 घंटे चाहिए होते हैं, ठीक है। ड्रोन वही काम 30 हेक्टेयर का कर देगा 1 घंटे में, प्लस इक्वल स्प्रिंकलिंग। आप देखोगे स्प्रिंकलिंग में वो क्या करते हैं, मुट्ठी में लेते यू फेंकते हैं, उससे इक्वल नहीं गिरता, पर ड्रोन से बिल्कुल इक्वल गिरेगा। प्लस आपने ड्रोन को एक बार समझा दिया,
एआई के थ्रू कि दिस इज व्हाट इन्फेक्शन लुक्स लाइक, वो 24 आवर स्कैनिंग कर रहा है, तो वो आपको इन टाइम बता सकता है. बट वाई आर वी नॉट डूइंग दिस राइट नाउ इन इंडिया? क्योंकि इंडिया में अब रिवर्सल ट्रेंड आ रहा है. जो पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में ऑक्यूपाइड थी ना, वो बढ़ती जा रही है वापस. पहले क्या था कि जो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड एक्टिविटीज में पॉपुलेशन थी, और पॉपुलेशन का जो वो था टेक इनपुट इन द जीडीपी, दैट वाज रफली 15-16%. नाउ द पॉपुलेशन इज अगेन गोइंग बैक टू एग्रीकल्चर. यार बिकॉज ए एग्रीकल्चर ऑफर्स अ गुड इनकम, बी इट इज अ मोर सस्टेनेबल प्रैक्टिस इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. आप इमेजिन करो कि सपोज आई हेल फ्रॉम अ विलेज, ठीक है, मैं अपने विलेज को छोड़ के आया शहर में, हो सकता है ना मुझे अच्छा ना लग रहा हो, गोइंग बैक टू माई village and earning the same amount of money and staying in a better clean environment, why would I not like that? And they did a study, they found out that the income of a person engaged in the same income strata in agriculture and in non-agriculture activity, agriculture activity is earning more. You would even see startups in the urban areas in milk, ghee, organic farming and such lines. मशरूम फार्मिंग का अभी कोर्स कराया था एसएल ने. आपको पता है मशरूम फार्मिंग से लोग 4-4 करोड़ रुपए कमा रहे साल के. क्या तुम्हें पता नहीं उन्होंने ऑर्नामेंटल मशरूम्स उगाने सिखाए थे. ऑर्नामेंटल मशरूम्स आर लाइक समवेयर अराउंड 20,000 रुपीज केजी, और वो घर में उगते हैं भाई, घर में उगते हैं. देयर प्रॉपर लाइट्स रिक्वायर्ड, प्रॉपर मॉइस्चर कंट्रोल. 20,000 रुपीज केजी एंड ऑलवेज देयर इज अ डिमांड. तो अगर 20,000 रुपए का तुम मार्केट में 15 का बेच दोगे, तुम्हारा तो बिक ही जाएगा. And SOL take a good initiative. I also wanted to do the course. I was not available. I missed the opportunity. 4 दिन इन्होंने पूरा दिखाया कि कौन सा मशरूम है, कैसे उगाते हैं, all of that, which was amazing. See, we talked about circular economy. They are talking now about rethinking of business model. ठीक है. The first step is design for durability. Do not think about a short term goal. Think about a long term goal. ठीक है. Resource recovery, implementing systems to collect and recycle materials by the end of product's life. ऐसा कौन सी इंडस्ट्री में होता है? You would not see certain parts in India, but they're coming in India. होता है. ओके, मैं पूछ रहा हूँ मुझे. इट्स अ क्वेश्चन ऑनेस्टली. हाउ डू दे डू दैट? बताओ. हम्म. 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 पर रिकवरी कैसे हुई? वी आर टॉकिंग अबाउट दैट द रिसोर्स शुड बी रिकवर्ड. मतलब मैंने गाड़ी इस्तेमाल कर ली, फिर मैं उस मेटल का क्या कर रहा हूँ? आई एम स्क्रैपिंग इट. रिकवरी. आई एम क्रिएटिंग न्यू मेटल फ्रॉम द ओल्ड मेटल. नहीं नहीं, वापस गाड़ी बन सकती है भाई. मेटल थोड़ी खराब हुआ है. मेटल क्या हुआ? रस्ट होगा. जब मैं मेल्ट कर दूंगा हाई टेम्परेचर पे, रस्टिंग क्या होगी फिर? ऑर्नामेंट जैसे कपड़े होते हैं. यू वुड हैव सीन देयर सर्टेन लेडीज हु कम एंड टेल यू कि बर्तन ले लो कपड़े की बजाय. दे डू इट. व्हाट डू दे डू? वो कपड़े जाते का है वापस फैक्ट्री में रिसाइकिल के लिए. आपके सेलफोन जो आपसे लेते हैं वो कहाँ जाते हैं? आपके सेलफोन में सिल्वर होता है भाई, 10,000 रुपए का. 10,000 का, जैसे जो आईफोन है उसमें कम से कम 10,000 का सिल्वर होता है. हाँ.
इसमें जितने भी सेमीकंडक्टर पार्ट्स हैं सब में सिल्वर होता है। तो आपका जो आईफोन होता है उसकी एक्चुअली वैल्यू बहुत हाई होती है, तो वो क्या करते हैं, खोलना पड़ेगा सर, ऐसे थोड़ी। So they take back the cell phone, they take out the semiconductor parts which can be used and they reuse it. तो धीरे धीरे ये आ रहा है, रीयूज एंड रीपर्पसिंग। रीयूज एंड रीपर्पसिंग कैसे हो रहा है, यू विल सी दैट जितना भी सोशल मीडिया है, ठीक है, यू वुड सी समथिंग के दे टॉक अबाउट DIYs, do it yourself, where they show you big almirah, you mother must be having that big almirah लोहे की, जिसमें से आवाजें खुलती है तो ऐसा लगता है जैसे तहखाना खुल गया, गॉड ऐसे खुलती है ना वो। हाँ, इट्स अ वेरी हेवी almirah, you cannot even lift it. So what are do people doing, they're repainting it, ठीक है। जो घर का फर्नीचर है जो खराब हो गया, पीपल आर मेकिंग एंटीक पीसेस आउट ऑफ इट, ठीक है। जैसे आई हैड माई फादर हैड अ फोन, पहले वाला, जिसमें यू गोल घुमाते थे, ठीक है। तो वी केप्ट इट एज अ शो पीस इन आवर हाउस, उसमें कोई डायल टोन कुछ नहीं आती। माई नेफ्यू दीज डेज व्हाट डज ही गो, ही गोज देयर एंड लाइक हेलो, हाँ मैं बोल रहा हूँ। समटाइम्स आई एम स्कैर्ड, व्हाट इफ देयर इज समवन ऑन द अदर साइड, बिकॉज ही डज द सेम थिंग व्हेन ही सिट्स इन द कार, ही इज लाइक देखो वो भाई बाहर खड़े होके बोनट पे कूद रहे, एंड आई एम लाइक कौन सा भाई, भाई दिख रहा है ठीक है, मत बता मुझे, दिखना इज नॉट द प्रॉब्लम इज यू टेलिंग मी। Then we talk about a closed loop system, creating a system where waste from one process becomes input for another. For example, for example, अब बताना है तुम्हें, you guys have to tell, कहाँ होता है ऐसा कि ऐसा कोई सिस्टम वेयर वेस्ट फ्रॉम वन प्रोसेस बिकम्स एन इनपुट फॉर अनदर। ओके, ही इज लाइक वेस्ट मैनेजमेंट मैनेजर। एग्जैक्टली, पेट्रोलियम में जो क्रूड ऑयल है उससे से पेट्रोल नहीं निकलता, जो वैसलीन है, it is one of the waste materials which is created out of petroleum. Charcoal है सड़क बनाने के लिए, so there's so much, so you create a closed system. Sustainable finance, investing in a greener future, ठीक है। So they're talking about three things. One is ESG integration, they're saying that you should, यार क्या है, environmental E, environmental S, social G, governance, you integrate all those factors. So the new startups, the new metric for them should be ESG. Are they environmentally friendly? Are they sustainable? Can they adhere to the governance? If they can, please include them. Second is green bonds. What are green bonds? So, have you heard pollution rights and carbon bonds? तो बाहर यूरोप में अगर कोई इंडस्ट्री सेटअप करता है एंड दे विश टू पोल्यूट द एनवायरनमेंट, तो जो कम्युनिटी होती है जहाँ के वो रिसोर्सेज पोल्यूट करते हैं, उनमें गवर्नमेंट बॉन्ड्स डाल देती है, इशू कर देती है। सपोज आप लोग कितने हो, अभी 8 लोग हो, मैं यहाँ पे कहूँ कि मैं यहाँ पे पढ़ाना चाहता हूँ, आपको तुम्हारे पढ़ाने से होगी नॉइज, नॉइज का मतलब है पोल्यूशन, पोल्यूशन का मतलब है मेरी हार्मनी खराब होगी। तो SOL के एडमिनिस्ट्रेशन आप सबको 10-10 बॉन्ड एलोकेट कर दें,
80 बॉन्ड हो गए। अब अगर मुझे पढ़ाना है, मेरे लिए एसओएल रूल बना दे कि अगर आपको पढ़ाना है तो आपको कम से कम 55 बॉन्ड चाहिए। उससे कम में अगर आप पकड़े गए पढ़ाते हुए तो आपको फाइन देना पड़ेगा 1 लाख रुपीज। ठीक है, हाइपोथेटिकल है, दिल पे मत लो एग्जाम्पल को, सिर्फ समझो। ठीक है कि हो क्या रहा है। अगर मेरे पास 55 बॉन्ड नहीं हुए तो मुझे 1 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो मेरा क्या काम होना चाहिए, और अगर मैंने एक क्लास ली तो मुझे 2 लाख रुपए मिलेंगे, राइट। मेरा काम होना चाहिए बहुत सिंपल, कि मैं कैसे भी करके 55 बॉन्ड एक्वायर कर लूं 1 लाख से कम की कॉस्ट में। अगर 1 लाख से ज्यादा के पड़ रहे हैं फिर तो मैं फाइन ही दे दूंगा, मैं कहूंगा रखो अपने बॉन्ड, राइट। मैं गया पहले सर के पास, मैंने कहा सर दोस्त नहीं हो, दे दो। तो ये लाइक सर ले लो। मैंने कितने में दोगे, तो इस साइड 1500 रुपये में ले लो। मैंने 15,000 में इनके एक्वायर कर लिए, इन्होंने 15,000 में कर दिए, ऐसे 4 बंदों ने कर दिए। ठीक है, अब मैं गया इन मैम के पास, कहती मैं नहीं दूंगी। सर मैंने भी यही कहा था, मैंने भी एग्जैक्टली यही क्वेश्चन कहा, पर इन्होंने कहा मैं नहीं दूंगी, क्योंकि आपके पास 40 बॉन्ड है, मतलब आप अब इन्वेस्टमेंट कर चुके हो। अब मेरे बॉन्ड के बिना आप 1 लाख भी नहीं दे सकते, राइट। तो माई बॉन्ड बिकम मोर यूजफुल। मतलब अगर पहले वाले ने 15,000 के दिए होते और ये मना भी कर देता और मैं छोड़ देता तो मेरे को 15,000 का लॉस ही आता। बट नाउ आई बी बेयरिंग अ लॉस ऑफ 60K विच इज अ लॉट। तो यू रिक्वायर माई बॉन्ड, शी लाइक मैं 2,000 में दूंगी एक, मैं एक्वायर कर लूंगा। अब मुझे 5 एक्वायर करने हैं। नेक्स्ट मैम कहती है नहीं, मैं तो 4,000 का एक दूंगी। तब मैं कहूंगा 4,000 का मत दो वरना मैं लूंगा नहीं, बिकॉज आई वॉन्ट टू प्ले दिस गेम, राइट। तो जब भी ग्रीन बॉन्ड्स या कार्बन बॉन्ड्स की बात होती है, जब वो देते हैं वनरेबल ग्रुप्स को, तो गवर्नमेंट यही कहती है कि यू गिव इट इन अ यूनिफॉर्म प्राइस, अदरवाइज द होल प्रोसेस वुड ब्रेक। यू गेटिंग माई पॉइंट? बिकॉज ऑफ द ग्रीड एंड सेल्फिश मोटिव द होल प्रोसेस वुड कम डाउन, इसलिए इंडिया में चल नहीं पाया। गवर्नमेंट वॉज प्लानिंग के पोल्यूशन के जो राइट्स है वो पब्लिक को देगी, कि अगर जैसे रोहिणी में कोई है और रोहिणी में फैक्ट्री सेटअप हो रही है तो उस विसिनिटी में इतने इतने बॉन्ड इशू कर दिए, पर लोग यहाँ पे बेचते ही नहीं। तो ये इसका मतलब है। इम्पैक्ट इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट जनरेट पॉजिटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट अलोंगसाइड फाइनेंशियल रिटर्न, जैसे कैडबरी, खुशियां बांटो। भाई पॉजिटिव इम्पैक्ट है ना, बस प्रोसेस उन्हें अच्छा करना है मॉन्डलीज को, पर है तो पॉजिटिव इम्पैक्ट, खुशियां बांट रहे हैं। वो तो ज्यादा ही खुशियां बांट रहे हैं, खतरनाक खुशियां। ठीक है, द फ्यूचर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल बिजनेस, one is collaboration, other is innovation. Why would we need to collab? Because there's certain environmental problems for which we as individuals cannot work. We have to take help of other people, other nation. जैसे environmental pollution is one problem जिसमें सारे nations मिलके काम कर रहे हैं, and innovation तो चाहिए। Challenges and opportunities in implementing sustainability. See, ये जितने भी challenges हैं, इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, ऑपरेशनल चेंजेस, रेजिस्टेंस चेंज। रेजिस्टेंस का मतलब तो ये हो गया कि सपोज जैसे फार्मर्स आज तक पराली जलाते आ रहे हैं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि पराली जलाना सही नहीं है। उन्होंने क्या शुरू कर दिया, रात को जलानी शुरू कर दी। ठीक है, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि वो क्या क्रिएट कर रहे हैं। तो देर इज अ रेजिस्टेंस टू चेंज। वाई देर रेजिस्टेंस टू चेंज? बिकॉज देर इज अ कॉस्ट इन्वॉल्व। अगर वो उसे अनप्लग करेंगे तो उसमें बहुत मेहनत लगेगी, इतना लेबर कॉस्ट नहीं होता उनके पास।
तो वो नहीं कर पाते। ऑपरेशनल चेंजेस, ठीक है, अगर आपको अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेशंस में कुछ भी सस्टेनेबल ऐड करना है तो देयर वुड बी चेंजेस इन द कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरा रोज का ऑपरेशन है, मैं एक कंपनी में डिलीवर करता हूँ खाना। अब मैं इलेक्ट्रिक फ्लीट लाऊंगा तो पैसे तो लगेंगे ना। तभी आप लोग देख रहे होगे देयर इज समथिंग कॉल्ड अ कैब सर्विस कॉल्ड अ ब्लू स्मार्ट। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लू स्मार्ट एंड ओला? एंड व्हाट इज अनदर थिंग कि दे हैव मेड इट सस्टेनेबल? कैसे बनाया उन्हें सस्टेनेबल? कैब बिजनेस में सस्टेनेबिलिटी का मतलब क्या है? कैब बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? बताओ गाइस। अब ये कह रहे हैं कि सस्टेनेबिलिटी से प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज होती है, ब्रांड रेपुटेशन, लॉन्ग टर्म ग्रोथ, वी हैव डिस्कस्ड ऑल ऑफ दिस। हाँ बताओ, कैब बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, सबसे ज्यादा क्या चाहिए? बताओ बताओ। कैब बिजनेस में, ये तुम सबने कैब ली है ना, कभी ना कभी। क्या प्रॉब्लम आई तुम्हें सबसे ज्यादा? एक कैब अच्छी नहीं होती कई बार, ठीक है। आई कैन टेल यू विद माई पर्सनल, एक बार मेरे को कैब मिली थी, उसमें सारे तो ब्लिंकर ऑन थे, इंजन लाइट, एसी चल नहीं रहा, सिस्टम उसके पास नहीं, हर जगह से टूटी फूटी, ठीक है। क्लच उसका दब नहीं रहा। मैंने कहा भाई तू चला के कैसे लाया यहाँ तक, ये बता पहले। कह रहा सर मैं आपको घर तक भी ले जाऊंगा। और मैं उस कैब में आया हूँ सुबह सुबह, मुझे आना था, मेरे पास टाइम नहीं था। भाई मेरे को लगा कि जिस दिन रुकी ना ऐसी रेड लाइट पे, इसका सारा सामान एक साथ गिर जाएगा और हमें ना नीचे उतर के उठाना पड़ेगा कि भाई टायर दे दे हमारा। कैब बिजनेस में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है जब ड्राइवर डिक्लाइन कर देते हैं। ब्लू स्मार्ट के सारे ड्राइवर्स आर ऑन पे, दे आर नॉट ऑन कमीशन बेसिस, दे आर एम्प्लॉइज, तो वो डिक्लाइन नहीं कर सकते। यूर अंडरस्टैंडिंग कि उन्होंने अपना बिजनेस कैसे सस्टेनेबल बनाया, एंड इट इज इंक्रीजिंग इट्स मार्केट शेयर। साफ सुथरी कैब्स, जीरो कार्बन फुटप्रिंट, वाइल दे रनिंग, इलेक्ट्रिक है, पानी गिराते हुए जा रही सड़कों पे, कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय, कार्बन मोनोऑक्साइड की बजाय, तो अच्छा नहीं है। द लास्ट थिंग फॉर द डे एंड थिंग इज दिस, सी व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? हमने इतनी बार इस टॉपिक के बारे में बात करी है इन डिफरेंट डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स व्हेन यू आर यूजिंग रिसोर्सेज यू आर प्रोड्यूसिंग, बट whatever you're producing, it is not the expense of the future generation production process। मतलब आज आप कहो कि मुझे इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तो ये नहीं कि आप सारा कोल इस्तेमाल कर लो, आप ऐसे यूज करो कि फ्यूचर जनरेशन के पास भी हो। इसी चीज को करने के लिए यूएन ने बनाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, ठीक है। लेट अस सी क्या ऑब्जेक्टिव है हमारे, मैम पढ़ना। बिहेवियर,
ठीक है. So the agenda consists of 17 sustainable development goals which address to a wide range of issues such as poverty, climate change and economic inequality. ये सारे गोल्स क्यों हमारे? पॉवर्टी से हमें क्या फर्क पड़ता है? भाई सबसे बेसिक चीज, व्हाट ही सेड, गुड. नंबर वन, खाना नहीं होगा यार. अगर पैसा नहीं होगा, खाना नहीं होगा, सस्टेन कैसे करेगा इंसान? वी आर टॉकिंग अबाउट सस्टेनेबिलिटी ऑफ ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो. अगर आपके पास मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन वीक होगी तो वो कैसे वेलफेयर के लिए काम करेंगे? ठीक है. आई विल शेयर दिस पीपीटी विद यू, दिस पीडीएफ. ठीक है. A carbon footprint refers to the amount of carbon dioxide other greenhouse gases emitted by a company's activity, including the production of goods and services, transportation, and energy use. मतलब this is production in the supply chain management. ठीक है. Transportation is operation, operations from taking them point A to point B. ठीक है. And energy use. And even while you're using it, consumption में भी carbon dioxide होगा. वन गुड एग्जाम्पल, नेटफ्लिक्स. जब आप 1 घंटे नेटफ्लिक्स देखते हो, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है? सो पीपल वर सेइंग दैट ड्यूरिंग कोविड वी डिड नॉट कम आउट ऑफ द हाउस, वी गेव रेस्ट टू द एनवायरमेंट. देन द स्टडी केम कि जो आप जितने भी नेटफ्लिक्स पे या कहीं पे भी, प्राइम पे, किसी पे भी आप शो देखते हो, जो वो सर्वर्स है वो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं और उसमें भी कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है. तो यू डिड नॉट डू एनी जस्टिस टू द एनवायरमेंट. ठीक है. Guys, all of this is theoretical. Just give it a read. ठीक है. We want to have a world where economic development that is socially inclusive and environmentally sustainable. Socially inclusive मतलब everybody is part of that development. It is not the development of a few at the expense of others. अब यूनाइटेड नेशंस एक बार मिले. ठीक है. जब ये मिले तो इनके बीच में बात हुई कि भाई एक बात बताओ, कौन कौन से इश्यूज पे हम बात करेंगे, हम कैसे सस्टेनेबिलिटी डिफाइन करेंगे. ठीक है. इन्होंने इशू करे. फिर उन इश्यूज को जब इन्होंने करा, 17 गोल्स डिसाइड करे इन्होंने, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, वाटर कंजम्पशन, सब पे करा इन्होंने बात. इन्होंने कहा अब एक टाइम पीरियड भी चाहिए कि कितने टाइम पीरियड में काम हो सकता है. तो दे टुक अ टाइम पीरियड ऑफ 2 decades. This is not something new. It has been in the, you know, this knowledge universe for a very long time. But a lot of countries are not able to do justice to it. अब इन्होंने गोल रखा है 2030 में वापस से असेस करेंगे कि क्या स्टेट है. एंड यू वुड सी दैट इंडिया इज एक्चुअली वर्किंग इफेक्टिवली व्हेन इट कम्स टू एजुकेशन एंड वाटर. ठीक है. Over the next 15 years, the goals and targets will inspire actions in the areas that are extremely important for both mankind and the planet. ठीक है. So people, जितने भी लोग काम कर रहे हैं कि सबका भला हो. ठीक है. प्लैनेट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स. हमारे प्लैनेट को सस्टेन करने के लिए क्या 3 चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है? हमारे प्लैनेट के लिए सस्टेन करने के लिए सिर्फ लैंड मासेस जरूरी है. उस पर लाइफ सस्टेन करने के लिए ऑक्सीजन, पानी वानी सब चाहिए. मार्स भी तो प्लैनेट है, प्लूटो भी है.
मर्क्यूरी भी है पर उस पर लाइफ तो नहीं हो सकती ना। तो ये सब ध्यान में रखते हुए दे हैव मेड द गोल। पीस पार्टनरशिप, यू कैन रीड इट, इट्स वेरी इजी। ठीक है। To understand that combating poverty and other forms of deprivation necessity policy that enable health and education, lessen inequality, promote economic growth, combat climate change, and seek to protect oceans and forests. इन्होंने बेसिस बताया वो 17 सस्टेनेबल गोल्स का क्या है। जैसे हमने बात करी, इट इज पीपल एंड द प्लैनेट। तो पीपल एंड प्लैनेट पे उन्होंने आगे बताया कि पीपल में हम चाहते हैं इनइक्वालिटी ना हो, एजुकेशन हो, इम्प्रूव्ड हेल्थ हो। हेल्थ के लिए भी उन्होंने डिफाइन किया कि मेंटल एंड फिजिकल। ठीक है। आफ्टर कोविड मेंटल हेल्थ हैज बीन डिफाइंड फर्दर। ठीक है। क्या है ये 17 गोल? नंबर 1, नो पॉवर्टी। नंबर 2, नो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलफेयर, क्वालिटी एजुकेशन। Number 5, gender equality. Number 6, clean water and sanitation. Number 7, affordability. Number 8, decent work and economic environment growth. Number 9, innovation. Number 10, reduced inequality. ठीक है। ऐसे when you see there are 17 goals। ठीक है। तो वी हैव बाइफ्यूरिकेटेड, वी हैव डिवाइडेड कि कौन सा गोल किसके लिए काम कर रहा है। सो 1 to 10, ठीक है, दे आर टू इंश्योर पॉवर्टी एंड टू फाइट इनइक्वालिटी। अगर आप हेल्थ, लाइफ, नॉलेज एंड इंक्लूजन ऑफ विमेन एंड चिल्ड्रन की बात करोगे, वी हैव गोल नंबर 3, 4, 5। ठीक है। सिमिलरली फॉर प्रॉस्पेरिटी वी हैव 6, 7, 8, 9, 11, 12। फॉर आवर प्लैनेट वी हैव 13, 14, 15। ठीक है। फॉर पीस वी हैव 16, एंड फॉर पार्टनरशिप टू कैटलाइज अ ग्लोबल चेन, अ ग्लोबल फैमिली। तुमने देखा होगा कि अब की बारी जितने भी फंक्शन हुए हैं, जो उनमें थीम था, वो थीम क्या था? दैट वी आर ग्लोबल सिटीजन। कि अब ये मत कहो कि तुम इंडियन, अब कहो कि वी आर फ्रॉम अर्थ। भाई अगर एलियंस है या कुछ भी है, देन वी हैव टू ग्लोबली कम टुगेदर एंड एक्ट एज वन, राइट? ठीक है। लाइक दिस, जैसे गोल 1 है, we'll discuss one goal and we'll understand every goal can be understood. There's self-explanatory slides, okay? The goal focuses on reducing poverty from everywhere in all the forms and manifestation. By 2030, it aims to eliminate severe poverty for all people everywhere, which is currently defined by people living on less than $1.25 a day. $1.25 a day कितना होता है? अगर तुम 100 रुपए का भी मानो, 125 रुपए। ठीक है। वैसे इट विल एक्चुअली अमाउंट टू 100, 103 rupees. I am talking about a family of 5 living in 103 rupees a day. इन्होंने इंडिविजुअली डिफाइन किया है, बट इंडिया में रियलिटी ये है कि जहाँ पे पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, a family of 5 is living for that amount. Imagine. ठीक है। Then what are the objectives we have set? We want to reduce it by at least half the percentage of men, women, and children of all ages living in poverty in all the forms, as defined by national standard. Attain extensive coverage of underprivileged and vulnerable by implementing nationally suitable social protection system and policy. Below poverty line schemes, ठीक है, or any economic योजना, all of them are aiming for that. We have to increase the resilience of underprivileged and those who are vulnerable and lessen their exposure to sustainability, climate-related disasters, and other environmental, economic, and social shocks.
जो पॉइंट डी था, हमने कहा कि हमें जितने भी अंडर प्रिविलेज्ड है उनको जो भी जिस भी टाइप का शौक है, चाहे वो सोशल एनवायरमेंटल, वो रिड्यूस करना है। कोविड के वक्त ज्यादा लोग कौन मरे? हु कुड नॉट अफोर्ड हेल्थ केयर। वो तो वायरस से होंगे ही ना स्टक। हाउ मेनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ द कोल्ड? हाउ मेनी पीपल डाई बिकॉज ऑफ द हीट? You will never see in your close vicinity anyone dying because of cold. But imagine someone living under a flyover. They want to reduce that. Okay, they want to increase the quality of life. And the point E says that they want proper natural resources, inheritance, appropriate technology, financial services. ठीक है, and they want to eradicate poverty. ठीक है, that is the goal. ऐसे ही सारे गोल डिफाइंड हैं. ठीक है. Will you guys be able to do it? Is there any problem? By this we come to end of this course. ठीक है. That makes this the last class of your ethics and business sustainability. ठीक है. Have a good Diwali. Have good exams. Do not take stress about anything. ठीक है. सर बंद कर दीजिए.